afternoon, everyone. Today, this is a special episode. I'm very excited for this one. We've got a husband-wife duo today to discuss a special topic. Obviously, I'll get into the topic a little bit later on, but first about the guest or the host, I would say. We've got Rahul. He's an influencer on LinkedIn, sales guru, entrepreneur, got his businesses running, like not just one, multiple ones. Best hair in sales. Like you can't just miss that, right? And then we have Priya, who is a holistic healer, spiritual guide, and a tarot reader as well. And she's also kind of getting up the ladder in LinkedIn right now and getting a lot of clients there and helping people out. So, first of all, welcome both of you, Power Duo couple. Welcome to the platform. And Thank you I so am much. Surya. and I am Surya. I am just a co-host, a guest co-host, and I'm privileged enough to have both of you to talk about a special topic. We'll be talking about a law of attraction, manifestation, and everything that is in between. So awesome. So, I've been thinking about a lot of things, right? And lately, one like specific topic that came to my mind is like some people get everything and some people don't. And wanted to kind of understand, is it luck? Is it hard work? Is it gimmick? What is it? And what is law of attraction? Priya, could you kind of give us some idea about that, please? कुछ आइडिया दे दो उसके बारे में, क्या है क्या ये? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर मैं सिंपली एक वर्ड बोलूं तो इट्स मैजिक. लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए मैजिक की तरह काम किया है हमेशा. मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हमारा माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, वैसी चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं घर से निकलती हूँ गाड़ी में, तो मैं ये सोच के काश आज रेड लाइट्स ना मिले, और मुझे तभी रेड लाइट्स मिलेंगी क्योंकि मैंने यूनिवर्स को वो पहले ही सिग्नल दे दिया कि ना मिले. मतलब मैं ऑलरेडी उसमें डाउट डाल रही हूँ या एक नेगेटिव थॉट डाल रही हूँ कि ना मिले. क्या मैं ये सोच के नहीं निकल सकती कि आज मैं एकदम फ्री फ्लो में ऑफिस पहुंचूं? सो ओके. लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे है. ये मैजिक जो भी क्रिएट होता है वो मैजिक हमारे माइंड में क्रिएट होता है सारा कुछ. Got it. And it could be both, मतलब positive, negative, दोनों तरफ, like it could swing. Understood. Rahul, what do you believe in? I think लोग थोड़ा ओवर कॉम्प्लिकेट होकर सोचते हैं कि one is obviously like Priya said कि like attracts like. So if I'm thinking negative things will happen. While अगर मैं सोच रहा हूँ कि यार so अगर let's say हम अपना career की बात करें and if we say यार इस साल मुझे ना मेरे को लग नहीं रहा मेरा प्रमोशन होगा, यार इस साल मुझे लग नहीं रहा मेरा अप्रेजल होगा, and you will see कि वो नहीं होता. Despite, and you will also see a lot of people despite the recession, कंपनी अच्छा कर रही है बुरा कर रही है, उनको फिर भी वो सब मिलता है जो वो डिजर्व करते हैं, फिर जो उनको लगता है कि वो चाहिए उन्हें. You will see. I mean, हम बातें करते हैं कितनी, I'm sure we all gossip after work, right? And we see यार उस बंदे को कैसे मिल गया, उसने तो काम भी नहीं किया, right? It happens every time. And that is because that guy believed more than you did. You were probably thinking about, यार मेरे को लगता है मेरा प्रमोशन होने वाला है, उसको लगा कि भैया मेरा प्रमोशन हो जाएगा, वो चिल होके बैठ गया. And his thought process is now, his actions are actually speaking the same language, और वो हो गया. इसमें मुझे एक बात ऐड करनी है कि खाली सोच लेने से कि उसका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा, नेगेटिव थॉट, क्योंकि आप उस चीज को ऐसा सोचो कि यार उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, दिस कम्स आउट ऑफ जेलेसी कह सकते हो या एनवी कह सकते हो. कि आप अपने काम पे ध्यान दो ना, कि मुझे आगे बढ़ना है, ये नहीं कि वो आगे बढ़ रहा है. सो और ये आप जो नेगेटिव थॉट अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो, ये भी आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है. सो दिस इज सॉर्ट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग. And if I were to probably add, I would say कि see, this is like she said, any other law. You might let's say wake up one day and say gravity does not exist. You might say all the laws of universe might not exist, but that is not true. So similarly, it is just exactly like that कि काम करता है, तुम believe करोगे and you will get everything in your life. You just have to believe it, apply the principles, and you will get everything. मतलब आप बिलीव करो या मत करो कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, आप उस पर थॉट दो या मत दो, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप में काम कर रहा होता है. जब से हम बॉर्न होते हैं तब से लेकर हमारे मरने तक ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे साथ काम करते रहता है. सिमिलरली
जैसे लॉ ऑफ कर्मा और बाकी अदर लॉज काम करते हैं। हमें पता नहीं है, एग्जिस्ट करता है क्योंकि हम उस चीज को देख नहीं सकते। लाइक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल, कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, हमें नहीं पता। किसी तरीके से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे यूनिवर्स में 24/7 हमारे साथ रहता है। हम चाहे उसे माने या मत माने, मानने से ये हो जाएगा कि हमारे लिए इजी हो जाएंगी चीजें, कि हाँ हम एक बिलीफ सिस्टम में चल रहे हैं, हमारी चीजें अलाइनमेंट में हैं। अगर आप नहीं मान रहे तो भी वो काम तो कर ही रहा है। इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को वो भी लगता है कि ऑब्वियसली सिर्फ सोचने समझने से काम नहीं बनेगा, एक्शन भी लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली विदाउट एक्शन तो कुछ चीजें, लाइक मैं मैनेजर बनूंगा, मैं वीपी बनूंगा, मैं सीईओ बनूंगा, काम नहीं किया तो थोड़ी बनोगे, तो वो वाला भी फैक्टर रहेगा, आई एम अज्यूमिंग। उसके बारे में क्या कहना है? I think both go hand in hand. So for example, सिर्फ अगेन मैं वो एग्जांपल लूंगा कि कितने लोग हैं जो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, राइट, फिर भी उनको कुछ नहीं मिल पाता, और वो लोग भी हैं जो मेहनत नहीं करते हैं उनको मिल जाता है, और वो लोग भी होते हैं जो दोनों करते हैं, एंड मे बी दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट जो दोनों चीजें करते हैं। यहाँ पे एक चीज ये है कि जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, कभी कभी वो आउट ऑफ डर भी कर रहे होते हैं। तो जहां फियर आ जाता है या डाउट आ जाता है, हम मेहनत तो कर रहे हैं पर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, इट कम्स आउट ऑफ डेस्परेशन और फियर, कि भाई डर है, मेहनत करनी है तभी कुछ मिलेगा। ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है कि हमें हर चीज डर से करनी होती है। और डेस्परेशन, हम पीछे भाग रहे हैं, और डेस्परेशन से तो वैसे भी लॉज आगे ही भागते हैं। इंटरेस्टिंग। ऑल्सो टॉक अबाउट, अभी और भी कुछ टॉपिक्स है जो बहुत सारे रोमांचक होंगे, लाइक एक पता करना है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ओरिजिन कहाँ से आया है, इसका हिस्ट्री क्या है, कहाँ से, मतलब ये पीछे एज यू मेंशन लाइक बैकग्राउंड में तो चलता रहता है, लेकिन ये किसने पता किया कि लाइक दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और फिर वी कैन ऑल्सो लुक इनटू अंडरस्टैंडिंग थोड़ा कोर प्रिंसिपल्स क्या है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, थोड़ा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स भी थोड़ा टच कर लेते हैं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी देखते हैं थोड़ा, एंड ऑब्वियसली उसके बाद थोड़ा कंक्लूजन में कि क्या अच्छा है, बुरा है, क्या है। तो दिस इज व्हाट वील काइंड ऑफ गेट इनटू इन द नेक्स्ट 30 odd minutes. हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो आई थिंक जब से ये यूनिवर्स बना है, अब वो कब से बना है, क्या है, इसकी कोई डिटेल ऐसे फैक्ट नहीं है, कि कोई डेट मेंशन नहीं है कहीं हिस्ट्री में कि इस दिन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन या ये यूनिवर्स ने काम करना स्टार्ट किया था। सो मेरे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जब से यूनिवर्स बनी है, इस यूनिवर्स पे या इस अर्थ लाइफ हुई है स्टार्ट, तब से ये काम कर रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। द सीक्रेट करके, और उसका उसका और इससे क्या लेना देना है, कुछ कुछ आइडिया दोगे उसके बारे में? So I think मैंने भी वहीं से ही सीखा था, if I'm being honest. So I did not read the book because watching videos is easy. So they had a great movie where they are, जहाँ पर वो सारे के सारे लोग जो believe करते हैं इसमें, and they are like far ahead in this profession, या फिर जिन्होंने खुद अप्लाई किया है सालों में, like they even brought examples of Oprah Winfrey and all that. So जो basic crux था उस मूवी में वो ये था कि everybody in the history knew about this. हिस्ट्री में सबको पता था, आई मीन राजा महाराजा सब कहीं ना किसी वे में, किसी ना किसी फॉर्म में इसको अप्लाई करते थे। एंड अगर मैं एग्जांपल अगर ऑन द टॉप ऑफ माई माइंड सोचूं, अगर मैं पांडव महाभारत की भी बात करूं, अगर उसमें भी देखोगे तो दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट देयर नेक्स्ट मूव, दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि हमें जीतना है या इस पे ये करना है, एंड देन दे टेकिंग एक्शंस अकॉर्डिंगली, एंड यू विल सी दे आर इवेंचुअली एबल टू डू इट. They actually have examples of very small example. They talk about techniques. They talk about how people in history have were smart enough to deploy it, and how people in the history were actually wanted to keep this a secret. That's the whole reason that this is the movie Secret. At the same time, the secret is this is something which will give you everything. तुम्हें life में जो भी चाहिए, पैसा, प्यार, और let's say जो भी, I mean गाड़ी बंगला जो भी चाहिए तुम्हें सब मिलेगा, as long as you apply the principles and as long as you are able to take right actions. सही है, सही है। That's how I got to know. और मैंने आई थिंक मैंने भी इसे सीक्रेट मूवी से, मुझे राहुल ने ही फर्स्ट टाइम ये मूवी सीक्रेट दिखाई थी। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मेरे को समझ में आ नहीं रहा है, तो मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा है। आई डोंट नो हाउ दिस बिलीफ सिस्टम वर्क्स। उस टाइम पे शायद मुझे समझ नहीं आई थी, बट रिसेंटली आई थिंक 2 years
पहले जब मैंने ये मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ाई करी या और ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश करी, तो हाँ, शायद अब मुझे समझ में आया है कि हाँ, ये चीज़ें काम करती हैं और ऐसे काम करती हैं। हमारे थॉट्स ही सबसे ज़्यादा हमारी पूरे लाइफ़ को मॉनिटर करते हैं। जो हम सोच रहे हैं, वो हम करते हैं, वो हम बोलते हैं या वो हमारी लाइफ़ में सामने आ जाती हैं चीज़ें। सो मुझे वहाँ से पता चला, फिर उसके बाद मैंने डेप्थ में इस मूवी के अलावा भी बहुत सारी और जैसे बुक्स हैं या सेशंस हैं या वर्कशॉप्स हैं, जिनसे मुझे और पता चला कि हम इसको किस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल लाइफ में। क्योंकि ये इतना टॉपिक को मतलब डरा देते हैं, इतना फस क्रिएट कर देते हैं कि मतलब पता नहीं क्या है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई बहुत मतलब लाइक कोई जादू है, जीनी है जो हमें हार्म भी कर देगा। नहीं, बहुत एक फन वे में हम उसे कर सकते हैं। मैंने ये अपनी और वर्कशॉप्स में भी सीखा कि ये कैसे-कैसे काम करता है। सो उसमें हम विजन बोर्ड्स बना सकते हैं, उसके लिए हम रिटन अफर्मेशंस कर सकते हैं और जब आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को मास्टर कर लेते हो, तो हम मेडिटेशन में अपनी चीज़ों को विजुअलाइज़ करके कर सकते हैं, व्हिच इज़ एडवांस लेवल ऑफ थिंग कि हाँ, मतलब वो बहुत सही जब हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं उन चीज़ों के। सही है, उसके बारे में और आगे थोड़ा चर्चा करते हैं। बट अभी के लिए प्रिया, आप मेरे को ये बताओ कि कोर प्रिंसिपल्स क्या है? तो व्हाट इज द रोल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड अफर्मेशंस? अभी इतना सब हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दो। सो ऐसा कुछ रिटन प्रिंसिपल्स नहीं है, कुछ लॉज नहीं है कि आपको ये 1 2 3 4 ऐसे स्टेप्स फॉलो करने हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली जैसे मैंने बोला विजन बोर्ड, आपको कुछ भी लाइफ में चाहिए, कोई रिलेशनशिप चाहिए या आपको प्रोफेशनल लाइफ में अपनी एक्सेल करना है, तो आप विजन बोर्ड क्रिएट कर सकते हो या फिर आप रिटन एफर्मेशंस कर सकते हो। सो वो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है एक्शन लेना। सो आई थिंक अगर कोर प्रिंसिपल की बात करें तो एक्शन है। उस एक्शन के बाद फिर हम अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बेसिकली कैसे बेवकूफ बनाते हैं बातें बोलकर, विच इज एफर्मेशन, जो हम रिटन वे में भी कर सकते हैं। आपको उसे ओरल वे में करना है तो आप ओरल वे में कर सकते हो, विजन बोर्ड बनाना है तो आप विजन बोर्ड भी बना सकते हो। See, before I got to know all about this, I think, and even though let's say किसी को नहीं पता इस बारे में, so you will realize that you, in fact, Surya, would be doing some of the things already without even realizing it. It's just a matter of, uh, let's say you are eating healthy, for example, but you're not. Sometimes you see, यार मेरा weight lose हो गया, कभी बढ़ गया, कभी कम हो गया. Now that is happening because you're applying the process half-heartedly or broken process. वो कभी तुम्हें लगता है, कभी चल जाता है, कभी नहीं चलता. It's like a monkey throwing darts और कभी कहीं लग गया and you're like, अच्छा यही process सही है. Similarly, like I said, everybody knows about this. Everybody is doing about, going about this. For example, हर कोई सोचता है ना, यार अगले साल मेरे को CEO बनना है या अगले साल VP बनना है, कुछ भी बनना है, right? Everybody thinks about it. फिर क्या होता है, क्योंकि वो प्रोसेस से तुम नहीं चल रहे, तो तुम जहाँ पे तुम्हें फिर then you what you do is you get into that rut and you get into that flow कि काम आया तो करा, नहीं करा तो नहीं करा, but you forget about the consistency. You forget about, यार I have to so you have to go back to the values कि तुम्हें बनना क्यों VP. It could be for whatever reason, as long as the reasons are right, as long as reason benefits you, reason benefits your overall family, कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए या let's say vacations चाहिए या जो भी चाहिए लाइफ में, right? As long as you know why you want what you want and as long as you're taking the action, वहां पहुंच जाओगे. इसमें ना आपका जो वाई होना चाहिए ना, उसकी इंटेंशन किसी को हार्म करने की नहीं होनी चाहिए। वो अगेन नेगेटिव थिंकिंग में आ जाएगा। आपका वाई हायर गोल से भी कनेक्टेड होना चाहिए। हायर गोल से मेरा मतलब है कि वो यूनिवर्स की अलाइनमेंट में होना चाहिए। किसी को ना तो हार्म करने के लिए होना चाहिए, कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होना चाहिए उसके अंदर। सो वो वाई इंपॉर्टेंट है हमारा इधर। So simple example is, मैं चाहता हूँ कि मैं let's say सूर्या और मैं एक ही कंपनी में एक ही पोजीशन पे काम करते हैं. मैं चाहता हूँ मैं VP बन जाऊँ और सूर्या ना बने. Like for example, अगर let's say एक ही पोजीशन है और मैं चाहता हूँ कि मैं बन जाऊँ तो सूर्या ऑटोमेटिकली नहीं बना, right? But at the same time, my intention should not be to harm you or not benefit you. So it should be like, hey, I want to become a CEO or let's say VP or whatever the position is. और मैं उसके लिए मेहनत करूंगा, उसके लिए मैं प्लान करूंगा, but at the same time I would want to have good intention for Surya as well.
मतलब ये सूर्या बात को सही है। किसी भी फॉर्म में नीचा नहीं दिखाना, उसे ऐसे फील नहीं कराना कि ओ गॉड मैं सीईओ बन गया और सूर्या नहीं बना, उसमें ग्लोट नहीं करना है अपने आप को। इंटेंशंस आपकी क्लीन होने चाहिए, किसी को नीचा दिखाने वाला काम नहीं होना चाहिए उसमें। ये बात सही है, मतलब खुद के लिए अच्छा चाहो लेकिन किसी और के लिए बुरा मत चाहो, हम्म। और फिर अपनी बाकी अपनी लाइन अपना। बड़ी करनी है, दूसरे की छोटी नहीं करनी ना। सही बात है, सही बात है। और प्रिया, आपने पहले स्टार्टिंग में कुछ तो बोला था, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आई थिंक राहुल ने आपने भी बोला था, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट, क्या उसके बारे में थोड़ा आप दोनों बता दो प्लीज। मतलब जैसे अगर आप जितना ज्यादा नेगेटिव सोचते हो, आप उतना ज्यादा नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे। अगर आप सोच रहे हो कि आप एक रिलेशनशिप में हो, उसके अंदर हमेशा प्रॉब्लम्स ही रहती हैं, आप बार बार ये सोचो मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड ने प्रॉब्लम है, मेरे बॉयफ्रेंड में प्रॉब्लम है, सो ऑटोमेटिकली आप वैसी चीजें, आपने छोटा सा सोचा, आपने एक बार सोचा, दो बार सोचा, वो आपका जो थॉट है बड़ा होता जा रहा है, तो आप और ज्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो फिर अपने रिलेशनशिप में। लाइक प्रॉब्लम्स आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी, कम नहीं होंगी। बार बार क्रिप करने से आप यूनिवर्स को या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये सिग्नल दे रहे हो कि मैं इस रिलेशनशिप से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, इसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, बजाय कि आप उसमें ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो कि एटलीस्ट मेरे पास एक रिलेशनशिप है, एटलीस्ट मेरे पास एक कंपेनियन है, एक पार्टनर है, उसी को आप थैंकफुल हो जाओ, बजाय कि ये कहने के बार बार इसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है। सो इसमें मैं ऐड करूंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आपके पास जो ऑलरेडी है आप उसको कितना प्यार दे रहे हो या उसमें कितनी नरिशमेंट डाल रहे हो। आप सीड सो कर रहे हो, आपने सीड सो करके छोड़ दिया, उसके बाद आपने उसे पानी नहीं दिया, उस सीड को प्यार नहीं दिया, तो वो बढ़ेगा ही नहीं। तो इट्स लाइक अ नरिशमेंट हर चीज में चाहिए होती है। ये बात सही है। और राहुल, आपका इसके बारे में क्या थॉट है, द बिलीफ दैट थॉट टर्न्स इनटू थिंग्स। I think thoughts become things was something which was probably said by Buddha at one point of time. Uh, if you think about this, जैसे मैंने बोला ना, I mean, we all have seen this happening every day in our life. जैसे इसने अभी गाड़ी वाला एग्जांपल दिया, ऑफिस जा रहे हो यार, आज ट्रैफिक ना मिले, उसी दिन ट्रैफिक मिलेगा। सो इट्स ऑल अबाउट थॉट्स, राइट? इट्स बिकॉज इवेंचुअली क्या होता है, वो थॉट्स वो इवेंचुअली बबल बड़ा होता जाता है, एंड इवेंचुअली ओवर पावर्स योर ब्रेन और व्हाटएवर द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स वर्क। आई वुड प्रॉब्ली नॉट गेट इनटू दैट, बट इवेंचुअली देन दैट्स हाउ यू टेक एक्शन। सो लेट्स से अगर तुम्हें सुबह उठो, और एग्जांपल देता हूँ, आज तुम्हारा मन नहीं है ऑफिस जाने का, तुम बोलो यार आज तो दिन ही बेकार है, वैसे भी ऑफिस में जाके होना क्या है, राइट? What you will do is now you will start finding more reasons and you will start taking action accordingly. यार मेरे को लग रहा है मेरी तबीयत खराब ही लग रही है मुझे, तो let me just take a day off. So eventually you start behaving in that pattern, you start taking small action eventually which leads to तुम आज ऑफिस नहीं गए, बिकॉज तुमने पहले सुबह सुबह तुमने थॉट में सोच लिया था आज दिन बेकार है, आज ऑफिस में ये है। इमेजिन ये स्कूल का टेस्ट, रिमेंबर हम सब करते थे, राइट? स्कूल में जब टेस्ट होता था उस दिन ही तुम्हें कुछ ना कुछ गले में कुछ हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, राइट? हो नहीं रहा, बट you're trying to do those actions. वो थॉट है ना दिमाग में, वो टेस्ट अवॉइड करना है। So eventually you राइट। start taking those action. Similarly, think of the same thing in the positive way. When you think कि आज मुझे let's say एक task achieve करना है, so what do? You probably think कि मेरा bigger task आज वो है, then you start breaking that task into smaller task and eventually action लेते रहते हो ना धीरे धीरे। ये और सही है। ट्रेडिशनली जो एक चीज, एक बहुत बड़ा मिथ है, नॉर्मली सबने ये सुना होता है, वो बिल्ली रास्ता काट गई तो आज तो काम खराब होगा ही होगा। उस बिल्ली की क्या गलती है उसके अंदर? अगर वो आपके तुम्हारे, वो भी तो रास्ता तो उसके लिए भी वही बना है जो तुम्हारे लिए बना है, तो उसमें उसकी क्या गलती है? अगर वो सेम रास्ते पे चल रही है तो हमें बिल्ली को क्यों ब्लेम करना है? तो हमने वो थॉट क्रिएट कर लिया, उसके बाद ऑटोमेटिकली हम वही अट्रैक्ट करते रहेंगे, ओ शिट बिल्ली ने रास्ता काटा, ये तो होना ही था। फिर वो नेक्स्ट क्या होता है, वो आपका जैसे राहुल ने बोला बबल बड़ा होता जाता है, एक छोटा सा हमें रीजन मिलता है, देन हम नेक्स्ट रीजन ढूंढते हैं कि अरे ये तो बिल्ली की वजह से हुआ है। सो वो बढ़ते चले जाते हैं, फिर एंड ऑफ द डे आपका पूरा दिन डिजास्टर हो चुका होता है और आप ब्लेम कर रहे होते हो बिल्ली के ऊपर। वो बिल्ली का नहीं, वो आपके थॉट्स का प्रॉब्लम होता है। ये सही है, बेसिकली ये प्लेसिबो इफेक्ट हो गया, और एंड यू नो हाउ योर बिलीफ कैन इम्पैक्ट योर आउटकम्स एज वेल। सो ये भी सही है, वेयर यू नीड टू हैव दैट कंट्रोल ऑफ, ओके कितना सोचना चाहिए उतना सोचो, लेकिन इतना भी मत सोचो कि बस वो रियलिटी बन जाए और यू आर एस्केपिंग फ्रॉम योर थॉट प्रोसेस कंप्लीटली, और द रियलिटी दैट
that you're trying? साइकोलॉजी के वे में आंसर करूं तो सब कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट करने के लिए या किसी भी हमारी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए। सो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या काउंसलर्स होते हैं वो आपको ऐसी एक्टिविटीज देते हैं सो दैट आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, देखो हमारे माइंड को कुछ नहीं पता है, जो हम फीड कर रहे हैं, जो हम उसे बता रहे हैं उसे वही समझ में आ रहा है। सो वो उसको ट्रिक करते हैं जो काउंसलर्स होते हैं एक्टिविटीज देकर या फिर एफर्मेशंस देकर कि आपको अपने माइंड को ट्रिक करना है, बोलना है। ऑब्वियसली क्या होता है इन चीजों से, एफर्मेशंस वगैरह से हमें ना एक पुश मिलता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्शन लेने के लिए भी। कई बारी कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं उठते हैं, तो आप उनसे एक्शन लेने के लिए क्या कहोगे? सो जो काउंसलर या थेरेपिस्ट होते हैं वो आपको इन एफर्मेशन से, इन एक्टिविटी से सिर्फ एक आपके सबकॉन्शियस माइंड को पुश देते हैं। सो ये अगर मैं साइकोलॉजी के वे में आंसर करूं तो कि ये बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड को उल्लू बनाने का काम है। सही। I like how you've kind of put that. वो सही है। और मेरे को थोड़ा साइंस के बारे में भी बताना था because a lot of people have strong beliefs and if they understand it from a science perspective then they are more open to these concepts, you know, rational thinking wise, right? So from a quantum physics perspective we are all made up of atoms और हम लोग को क्या differentiate करता है, that is basically the density of the vibration of atoms, right? So higher vibration frequencies attract higher vibrations, lower vibration frequencies attract lower vibrations, और यहाँ पे भी obviously different thoughts and different feelings have different frequencies. So Surya, obviously everything is energy. हम Exactly. राहुल एनर्जी है, मैं एनर्जी हूँ, तुम एनर्जी हो, तो वही जिसको आजकल बहुत ज्यादा फैंसी वर्ड नाम दे दिए कि हमें तुमसे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं या ये वाइब्स हैं। सो इट्स ये वो चीज नहीं है कि वाइब्स वाली, कि क्या होता है जब एक आप नेगेटिव बंदे के साथ रहते हो या एक नेगेटिविटी के अक्रॉस जाते हो, सो क्या होता है वो एक ऑरा क्रिएट हो चुका होता है बिकॉज हर कोई यहाँ पे एनर्जी है। हम तो इस बॉडी के अंदर एक है तो अंदर एनर्जी, जैसे तुमने बोला हम एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स है, या अगर हम साइंटिफिक वे में उसको नेम दे तो सो ये जो आजकल बड़ा फैंसी वोग चीज चल रही है कि वाइब्स हैं, वो वाइब्स है हमारी एनर्जी। जो हम सोच रहे होते हैं ना वो हम वैसी एनर्जी बाहर थ्रो कर रहे होते हैं। अब चाहे कोई सामने वाले को ये लगे कि इसे तो हमारे थॉट्स पता ही नहीं है, बट लेकिन क्या होता है आप ऐसी वाइब्स छोड़ने लग जाते हो। बेसिकली इट्स एनर्जी। एग्जैक्टली मतलब जेनजी के भाषा में बोले तो कुछ लोग बीटी देते हैं, बैड ट्रिप देते हैं, और कुछ लोग चिल वाइब्स देते हैं, तो इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। सही है। और फिर वो भी है ना कि कुछ कुछ थॉट्स और फीलिंग्स जो होती है, ऐसे एग्जांपल एंगर हो गया, गिल्ट, फियर, these we are operating at lower frequencies and that's what we attract as well. And similarly if we have like good feelings like happiness wala feeling, thoda you know energy wala feeling, then we are operating at higher frequencies and we would attract the same over there as well. वो सही है। फिर so जैसे ना सीक्रेट मूवी में भी बोला हुआ है कि हम मैग्नेट का काम करते हैं, हम वो चीजें अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि हम एक मैग्नेट है। अगर हम अच्छी चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम बुरी चीज भी अट्रैक्ट कर सकते हैं बिकॉज हम एक एनर्जी है, हम एक मैग्नेट है। ये सीक्रेट मूवी में के अंदर बोला हुआ है। सो उसमें एग्जाम्पल जीनी का भी लिया हुआ है कि जो यूनिवर्स है एक जीनी है और हम विश कर रहे हैं, और अगर हम विश गलत कर रहे हैं तो हमें उसका रिजल्ट भी मिलेगा। मतलब बेसिकली जब हम ऑब्वियसली लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाली बात हो जाएगी ना फिर उसमें। एग्जैक्टली सही है। अभी थोड़ा बात करते थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की। राहुल आपने स्टार्ट किया था बोलना कुछ विजुअलाइजेशन और विजुअल बोर्ड्स, समथिंग लाइक दैट, राइट? क्या है क्या वो चीज और आपके लिए वो कैसे काम करती है? See, I think different components हैं इसके। One is affirmation, जिसमें let's say मेरी मास्टरी नहीं है, प्रिया की है, मेरी visualization में है, right? और maybe I think I'll talk about visualization. So the way it was shown in The Secret is that there are different ways to do it. So one is again maybe a more scientific way or maybe more structured way, जिसमें where you spend let's say a certain time, just like meditation के लिए, exercise के लिए, कि तुम्हें रोज करना है, right? It could be कि तुम रोज एक ही टाइम पे कर रहे हो, सुबह उठ के या सोने से पहले या whatever, right? Whatever. I mean, I think Priya can talk more about that in detail in a more structured, scientific and spiritual way.
मैंने जैसे किया, सो मेरे को जो इजी लगा मैंने पहले वो किया, I'll be honest. सो मेरे को जो उसमें चीज अट्रैक्ट करी वो ये थी कि देयर इज अ बॉय हु वांटेड अ साइकिल, एंड व्हाट ही डिड इज he he found a picture of the same cycle he wanted, मैगजीन में से काटी, अपनी स्क्रैप बुक में लगाई, and he's believing now कि वो उसकी है. He's like literally visualizing in his mind कि यार मैं इसको चला रहा हूँ, मुझे when I'm actually चला रहा हूँ तो मुझे वो हवा मेरे मुंह पे लग रही है, I'm like falling or enjoying, वो उस पूरे जोन में चला गया, right? So और मेरे को वो चीज इजी भी लगी. For example, when you know I started, for example, उस टाइम पे I used to have like one pair of a shoe, and I used to like shoes. I still like shoes. So I mean, I started collecting picture of shoes, and what I'll do is I'll show everybody a picture of my scrapbook, which which I've had for a long time. So basically, I mean, I started believing कि ये shoes मेरे हैं, and what I also did is I started going to the actual showrooms where they were selling these shoes. Try kiye shoes. I got into that zone ki acha, if I wear this is how I would feel. I started seeing those shoes everywhere, wherever I go. My colleague had one, and I used to ask him, you know, where did you buy it from? So I started collecting basically more information. I started like, it's just like when somebody's trying to buy a car, right? You realize कि तुम्हें हर जगह वो गाड़ी दिखती है, तुम्हें हर जगह वो ad दिखती है, and sometimes it could be due to technology because phone तुम्हारी बातें सुन रहा है and all, but overall if you think तुम्हें वो गाड़ी हर जगह दिखती है, color हर जगह दिखता है, brand हर जगह दिखता है. So what do you do when you are trying to buy that car or your dream car? You go for a test ride. Similarly, whatever you need and whatever I needed in my life, I went for a test ride. If I wanted, let's say, a car or a house, or let's say even a vacation, I started watching a video. मैं वीडियो में I could feel, अच्छा यार मैं यहाँ आऊँगा तो मैं ये खाऊंगा, मैं ये पीऊंगा, हम यहाँ अगर if you're planning as a couple, तो मैं अगर हम यहाँ जाएंगे तो हम ये चीजें करेंगे, right? And so things of that nature. Basically, you will do anything and everything to start making your mind believe, yeah, this is all happening already. It's not in the future, it's not in the past, it is all in the present, that I am enjoying this right now. And plus, for me, the last thing which I would add to this is there has to be attitude of gratitude every time you do something. So I mean, the चीज जो मैं प्रिया को भी बोलता हूँ कि I still pray for the things I wish I had, and we have already had those things. We already have those things. So things which we have today, we are still thankful, and we still pray for कि यार, you know what, that these things remain with us. बेसिकली ग्रेटिट्यूड में अगर आपके पास आपको कोई एसयूवी चाहिए या कोई लग्जरी एलीट कार चाहिए, तो पहले आपके पास जो भी गाड़ी है, छोटी है, जो भी है, मैं कोई गाड़ी का स्पेसिफिक नेम नहीं ले रही, तो अगर आप उसको उस मर्क की तरह या उस एक लग्जरी कार की तरह यूज नहीं करोगे, या उसको कहोगे यार ये तो इतनी बेकार कार है मेरी, तो आपको तो आप भूल जाओगे आपको लाइफ में कभी भी बड़ी गाड़ी मिलेगी. And this is something which you will see with a lot of people, right? They'll be like, यार मेरे पास अभी मतलब, so people have a disconnect in their head कि यार मैं अभी मारुति चलाता हूँ. I can't even imagine an Audi, right? I can't imagine a Merc, Beamer, whatever is your dream car, right? Eventually. So the thing is, one, there is a lot of disconnect in a lot of things. One is because तुम अपनी present situation को देखते हो और कहते हो यार ये क्या मेरे पास क्या है. First, be really, really grateful कि कितने जो तुम्हारे पास है वो आधे लोगों के पास भी नहीं है. एटलीस्ट है तो सही आपके पास गाड़ी. इस वर्ल्ड में, इस पूरे हमारे ग्लोब में इतने लोग हैं जिनके पास गाड़ी तो क्या छोड़ो, साइकिल भी नहीं होती है. सो एटलीस्ट तुम उतने ग्रेटफुल तो हो कि तुम्हारे पास गाड़ी है. So I'll give you a very simple, small example. ठीक है? So I have over 25 pairs of shoes. ठीक है? Every weekend I will make sure कि I will polish them, or whenever, let's say, I use a shoe on a daily basis. I know a lot of sneakerheads would do it. I would not call myself a sneakerhead. I just have a different variety of collections of shoes. But जो भी मेरे shoes होंगे, I would make sure कि मैं उस पे अगर एक घर आऊँगा तो I will clean them right away and I'll keep them. I will cherish them. I will really be happy when I see a shoe, or all my shoes. All my shoes are in very good condition if I talk about this. And because of that, I'm able to attract even more. So with God's grace and everything, if I want, I can. I mean, I remember the days when my mother used to let me buy just one, and that happens because I had that gratitude कि यार मेरे पास जो shoes था पहले वो एक time पर एक ही shoes साल, I used to even cherish that क्योंकि मुझे मालूम नहीं मिलेगा. So that was everything I had. सही है. हाँ, सो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ पैरेलली काम करता है ग्रेटिट्यूड. आप एक घर में रह रहे हो, उसको
कोसे जा रहे हो ये घर कितना गंदा है, ये लोकेलिटी कितनी गंदी है, ये जगह कितनी बेकार है। सो आप क्या कर रहे हो, सारा कुछ आप अपना जो आपका माइंड का रिजर्व चल रहा है वो सब नेगेटिव में चल रहा है। तो कहाँ से आप पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे, आएगी कहाँ से पॉजिटिव चीज? तो यूनिवर्स आपको बोलेगा पहले आप जो है उसको तो आप एक मैनिफेस्टेशन में लव देना, मतलब प्यार देना, आप उसको दे ही नहीं रहे हो, तो फिर आप क्या गारंटी कि आपको दूसरी चीज बहुत अच्छी मिलेगी? And since we're talking about techniques, I'll just stick to what I said. The visualization worked for me, and the second core component to this is the belief. So I had a strong belief कि यार मेरे को जो भी चाहिए मुझे लाइफ में मिलेगा. This is all for me to have it. A lot of people, why they don't get anything they want is because they have been conditioned in a way बचपन से. I mean, we all come, most of us come from middle class families, right? So हमें बचपन से कंडीशन किया जाता है यार कि मतलब इतना पैसा क्या करना है. इफ यू सी पैसा कमाओगे तो 10 गंदी आते लग एंड जाएंगी. यहाँ पे पेरेंट्स कुछ ये भी बोलते हैं कि अमीर बच्चों के साथ रहोगे तो बिगड़ जाओगे। माय पेरेंट्स यूज्ड टू से दैट कि यार मेरा एक फ्रेंड होता था, लाइक यार उसके साथ मत घूम, बिगड़ जाएगा, तू तो पहले ही बिगड़ा हुआ है, पैसे हैं उड़ाने को. आई मीन, like I said, most people come from middle class families, so we all have been brought up given the same circumstances and conditioning. तो वन इज लाइक बिलीव. वो बिलीव जो माइंडसेट है ना, वो लाने में बहुत टाइम लगता है. क्योंकि अगेन थिंक अबाउट दिस कि तुम 25 साल 30 साल तक एक ही माइंडसेट में जियो कि पैसा कमाने से तुम गंदी आदतों में पड़ जाओगे, पैसा कमाने के तुम्हें गलत काम करने पड़ेंगे, या फिर कि मतलब भगवान का दिया सब कुछ तो है ही और क्यों चाहिए, राइट? या फिर हम अच्छे इंसान हैं, आई थिंक दैट्स ऑल इट मैटर्स. मतलब एक वो जो लूप है ना, हम उस लूप में ही घूमते रह जाते हैं कि ये बुरा है, ये बुरा है, पैसा बुरा है, पैसा बुरा है, तो हम वो एक अट्रैक्शन क्रिएट कर लेते हैं। अगर गलती से ऐसे माइंडसेट वाले, मेरे पास ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो ऐसे माइंडसेट के साथ हैं, उनके पास पैसा आता है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आता। ऑब्वियसली अगर आप एक बिजनेस में बैठे हुए हो और पैसे कमा रहे हो तो पैसा तो आ ही रहा है, लेकिन क्या होता है जब आप उस माइंडसेट में होते हो ना, तो वो उतनी जल्दी ड्रेन भी हो जाता है पैसा आपका, क्योंकि आप उस पैसे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो कि पैसा गलत चीज है, पैसा गलत चीज है, तो पैसा कहेगा कि मैं तेरे पास रह के क्या करूं जब तुम मुझे गलत चीज कह रहे हो। सो सही है। और लाइक सो राहुल के लिए विजुअलाइजेशन काम करता है, राइट? सुप्रिया, आपके लिए क्या काम करता है? आप कुछ टेक्निक्स है, लाइक मैंने भी पढ़े थे ऑनलाइन वगैरह में कि वो 5-5 कुछ होता है, 3-6-9 कुछ होता है, लाइक ऐसे बहुत सारे होंगे। आपके लिए क्या काम करता है? सो मेरे लिए जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने अपने आप को इमोशनली हील किया था, सो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था बहुत इजी वे से, क्योंकि जिस स्टेट ऑफ माइंड में मैं उस टाइम थी, तो मुझे लगता है कि ये विजुअलाइजेशन, ये जो हायर लेवल मेडिटेशन या टेक्निक्स होते, तब मुझ में वो कुछ काम नहीं करने वाली थी। सिंपली मुझे बेड से उठना ही था सिर्फ, उसके लिए मेरे को सबसे इजीएस्ट वे ढूंढना था। सो जो मैंने सबसे पहले टेक्निक, ऐसे तो बहुत सारी टेक्निक्स यूट्यूब पे हैं, जैसे सूर्य ने बोला 5x5 और ये 3-6-9 वाली, सो उससे भी इजियर है कि मतलब आपको बेड से ही उठाने के लिए काम करेंगी, वो आपको सिर्फ बैठे बैठे करनी है और कुछ नहीं करना है। सो जो मैंने सबसे पहले स्टार्ट करी थी वो थी 21 डेज की एफर्मेशन, सिंपली जो मैंने अपनी इमोशनल हीलिंग के लिए करी थी, अपने सेल्फ लव के लिए करी थी। ठीक है, मुझे पहले तो अपने आप को ही इमोशनली खड़ा करना है। सो जो सिंपली मैंने करा था, आई लव माई सेल्फ, ये मेरी एक स्टेटमेंट थी, आई लव माई सेल्फ। ये मैं 21 डेज तक मैंने करी थी। ये फर्स्ट टेक्निक है जो सब जिसको भी एफर्मेशन स्टार्ट करनी है। सो मैंने एक ग्लास वाटर लेती थी रोज सुबह, और जैसे वाटर में एनर्जी होती है, तो एवरीथिंग इज एनर्जी हियर, तो वाटर में भी मॉलिक्यूल्स, एटम्स होते हैं, उसकी खुद की भी एक एनर्जी होती है। तो और जब हम उस वाटर को अपनी एनर्जी देते हैं, ऐसे हमें उस एक ग्लास ऑफ वाटर को लेना है एंड उसे हमें देखना है, देखते हुए 21 टाइम्स वी हैव टू रिपीट वन एफर्मेशन, जो आपको मतलब इजी वे में अपने आप को एफर्मेशन स्टार्ट करनी। और सबसे पहले वो देखकर बोलना है, एंड उस ग्लास को आपको एक बार में पी जाना है, मतलब रुकना नहीं है। तो आप उतना इनफ पानी लेना कि आप एक बार में उस पानी को पी सको। उससे पहले आपको वो एक थॉट क्रिएट करना है कि मैं ये जो भी कर रही हूँ ये मेरे पे काम करेगा। डाउट नहीं लाना है,
मेन सिस्टम वही ना, आपका बिलीफ सिस्टम जब काम करना शुरू करता है ना, तो जैसे नेगेटिव वे के लिए लूप काम करता है ना, वैसे ही पॉजिटिव वे के लिए भी वो लूप काम करेगा आपका। सो वो 21 डेज की ये वाटर एफर्मेशन है जो सबसे इजीएस्ट है कि भैया आप उस पानी को देखो, 21 टाइम्स रिपीट करो और 21 डेज तक करो। सही एक है। है, एक ही एफर्मेशन। और कभी भी एफर्मेशन में ना हमको कुछ नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करने, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, किसी के लिए बुरा नहीं मांगना है कि उसके साथ ये बुरा हो जाए, ठीक है। दूसरा, हर एफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। और स्पेसिफिकली ज्यादा अगर वो हमें काम करना है, ज्यादा हमें जल्दी फास्ट फास्ट अपनी एफर्मेशंस चाहिए, तो आई एम की स्टार्ट करनी होती है कि आई एम की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। वो मैं और आगे भी बताती हूँ कि वो कैसे होती है, नंबर्स लेटर्स कैसे वाइब्रेशन होती है। तो वो हमको सबसे पहले करनी होती है, जो बहुत इजी है कि 21 डेज तक करना है आपको। और हाँ, ये सबसे पहले उठते ही ना मॉर्निंग में करना इसलिए जरूरी होता है, या फिर सोने से पहले, क्योंकि हमें जो मॉर्निंग में हम उठते हैं, हमारा फ्रेश माइंड होता है। तब तक हमारे अंदर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया का क्लटर माइंड में नहीं गया होता, या क्या हमारी मेड कर रही है, या हमारे घर में क्या आया है डिलीवरी, वो कुछ क्लटर गया नहीं होता। तो सबसे पहले फिर वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जाती है, वो अपना एक जगह बना लेती है माइंड में। तो ये उठते ही करना होता है। फिर या फिर सेकंड चीज आप कर सकते हो, रात को सोने से पहले उसको करो, क्योंकि सोते टाइम वो फिर हमारे माइंड में, जब आप एकदम नींद में जाने वाले होते हो ना, तब करनी चाहिए, ताकि आप बोलते बोलते ही वो सो जाओ, मतलब उस एफर्मेशन को, वो आपके माइंड में रहे, कुछ और क्लटर ना जाए। वरना वो क्या होता है, वो एफर्मेशन धीरे काम करती है, ऐसे नहीं है नहीं करती, पर वो धीरे काम करेगी। जो चीज आपकी 21 डेज में होनी होती है, वो कई बार 33-45 डेज भी लगा देती है। तो फिर लोग कहते हैं हमारी तो एफर्मेशन काम ही नहीं कर रही है, ये तो काम ही नहीं कर रहा है। पहले तो आपके पास भी तो वो है ना, छोटे छोटे लूप्स हैं कि ये ऐसे काम नहीं कर रहा, वैसे काम नहीं कर रहा। और बिलीफ सिस्टम तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही उसके अंदर। एंड जो नेक्स्ट आती है हमारी, वो है हमारी 5x5 टेक्निक। सो 5x5, सबसे पहले 5 नंबर अपने आप में, एक जो नंबर की वाइब्रेशन है वो है चेंज की, ट्रांसफॉर्मेशन की। सो वो चेंज लाने के लिए होता है, वो हमारे माइंड में शिफ्ट लाने के लिए, हमारे थॉट्स को शिफ्ट करने के लिए होता है। तो 5x5 यानी कि 5 डेज तक 55 टाइम्स हमें एक स्टेटमेंट बोलनी है, एक टाइम में बैठ के। ये नहीं कि मैंने 23 सुबह बोल ली, बाकी मैंने शाम को बोल ली, ऐसे नहीं करना है। वो इंस्टॉलमेंट एक में नहीं टाइम में चलेगा। बैठ के हमको 5 डेज तक कंटिन्यूअसली करनी होती है। सेम रूल वही है कि नेगेटिव नहीं बोलना, प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, और किसी के लिए बुरा नहीं मांगना, कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। सो ये 5x5 वाली मेथड है, जो 5 वही मैंने बताया कि वो चेंज का, ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है, क्योंकि वाइब्रेशन उस नंबर की ऐसी है। सो नेक्स्ट हमारी आती है 369 निकोला टेस्ला, जो बहुत लोगों को पसंद होती है। नॉर्मली लोग वही करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इलॉन मस्क ने ये टेक्निक करके इतना कुछ कर लिया, तो हम भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसने बहुत सारे एफर्ट्स भी डाले होंगे, जो सेम एफर्ट्स हम नहीं डाल रहे होंगे, बट हाँ ये कि आप कुछ तो बेनिफिट ले सकते हो उससे। सो ये 369 की नंबर्स की अपनी अपनी वाइब्रेशन है। 3 नंबर की वाइब्रेशन कहती है डोरवे, यानी कि आपने एक चीज के लिए पोर्टल खोल दिया, एक रास्ता खोल दिया। नंबर 3 की वाइब्रेशन ये कहती है। सो इसको करना है आपको 3 टाइम्स मॉर्निंग, 6 टाइम्स आफ्टरनून एंड 9 टाइम्स इवनिंग में। और ये या तो आप 33 डेज करो, 21 डेज करो, या 45 डेज करो। नंबर आएगा उसका 369। 21 इक्वल टू 3, 33 इक्वल्स टू 6 और 45 इक्वल्स टू 9। तो ये ऐसे काम करती है 369। सो 6 नंबर की वाइब्रेशन आपके थॉट्स को चेंज करने में लाती है, कि आप अपने थॉट्स को कैसे, या अपनी फीलिंग्स को या इमोशंस को कैसे मॉनिटर करते हो। 6 नंबर की वाइब्रेशन वो कहती है। और 9 नंबर कहता है कि यूनिवर्स में ऑलरेडी आपका आंसर है, मतलब आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो 9 नंबर की वाइब्रेशन ये कहती है। तो इसीलिए ये कुछ स्पेसिफिक नंबर से ही हमें मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए, सो दैट
हम यूनिवर्स के उस अलाइनमेंट में रहे। ऐसा नहीं है कि बाकी नंबर्स बेकार होते हैं। जो आई एम की वाइब्रेशन होती है वो कहती है, वो होते हैं 147। 147 इक्वल्स टू आई एम। जब कुछ भी हम मैनिफेस्ट करते हैं तो उसके आगे हमें आई एम इसलिए लगाना जरूरी होता है। तो वो कहती है आई एम कॉन्शियसनेस। मैं ऑलरेडी, मेरे माइंड में वो चीज है, मैं वो ऑलरेडी बिलीव कर रही हूँ, क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं उसको। सो ये ऐसे काम करती है हमारी मैनिफेस्टेशन, जिससे आई एम गुड इनफ। मतलब सही है। अपने लिए आप बोल सकते हो आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ गुड मैनिफेस्टर। तो ये एफर्मेशंस अपने सेल्फ लव के लिए, अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए काम करती हैं। सो टेक्निक्स तो ऐसे काम करती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट 2-3 इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, बिलीफ सिस्टम को चेंज करना, थॉट प्रोसेस को चेंज करना, एक्शन लेना। इम्पोर्टेंटली, आप खाली बोले जा रहे हो, उस चीज को बिलीव नहीं कर रहे हो और एक्शन ही नहीं ले रहे। ठीक है, आप कह रहे हो कि आप मैनिफेस्टेशन सुबह उठ के बोल रहे हो, रात को बोल रहे हो कि आई एम लव, आई एम लव, आई लव माई सेल्फ, और क्या कर रहे हो दिन भर में अपने आप को शीशे में देख के कह रहे हो कि मैं तो कितनी गंदी लग रही हूँ, मैं तो कितनी मोटी लग रही हूँ, ये मेरा ये नाक अच्छा नहीं है, मेरे ये लिप्स अच्छे नहीं है। तो क्या कर रहे हो, एफर्मेशन के आप कट कर रहे हो ना उसको। बेसिकली बैलेंस भी करना चाहिए लॉ ऑफ हाँ, अट्रैक्शन को लॉ, विद मतलब एक्शंस। ऑब्वियसली यूनिवर्सल 24/7 काम करता है। ऐसा नहीं है कि आपने वो मॉर्निंग में एफर्मेशन करी तो सिर्फ तभी काम कर रहा है, वो तो थ्रू आउट डे काम करेगा ना आपका। और एफर्ट भी डालना चाहिए विदाउट कंप्लेसेंसी, दैट्स वेयर यू विल काइंड ऑफ गेट दैट, हाँ। राइट? और आपने जब बता रहे थे वो 21 डेज वाला, उसमें मेरे को दो चीजें बतानी थी कि आजकल के जमाने में उठते ही इंस्टाग्राम खोलना तो मतलब हाँ, आदत सी हो जाती है, तो वो करना चीज बहुत मुश्किल होता है कि बिफोर दे स्टार्ट इंस्टाग्राम दे हैव टू डू द implementation of this law of attraction piece. And वो जो पानी पीने वाला सीन है, एक गल्प में पीना जो होता है, वो जो लोग बॉटम्स अप पिएंगे उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, तो वो वाला भी चीज है। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको रियली अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहिए तो थोड़े बहुत एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, और पानी पीना सुबह तो अच्छी ही बात होती है ना। सो बिल्कुल वो बिल्कुल। एक अच्छी एक हैबिट भी हो जाएगी। Can we replace it with the beer? Is the question. नहीं, मैंने बोला ना पानी में एनर्जी होती है, उसमें भी तो पानी होता है बट 70%। उसमें आपका मिक्स हो जाएगी और भी चीजें, तो फिर आपको रिजल्ट भी मिक्स ही मिलेगा फिर। सही है। मेरे को यहाँ पे एक चीज और ऐड करनी थी। यहाँ पे मैं एक एनालॉजी डालना चाहूंगा फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट what both Rahul and Priya has given, right? Have given here is basically when you play a game, be it Mario या Candy Crush या कुछ भी हो. So when you're starting from level 1, you cannot wish to directly go and beat the boss level. You cannot directly go to level 999 या 3000 या 4000 या whatever. You'll have to incrementally level up, deserve, play that game enough so that you kind of find it easy, and only then you can cross that level, go to the second level, go to the third level. Probably sometimes you might get some boosters, which in some cases people बोल सकते हैं कि वो तुम्हारा लक था, तुम्हें आ गया वो, और उसकी वजह से तुम 10 लेवल अप आगे बढ़ गए। बट वही चीज है कि रियल लाइफ में भी अगर हम देखते हैं, इट्स आर एक्शंस दैट आर लाइक karma बोलो या कुछ बोलो, that will kind of give us something back in kind, something back in return, that will help us accelerate in certain ways. So that way we can actually think about, yeah, we cannot directly go to the boss level, we'll have to go level by level, or actions ke bagair, like without practice you cannot like complete a level or a certain action, certain level up, like directly tum CXO nahi ban sakte. मैनेजर से सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, वीपी, फिर Right. तुम उस लेवल पे बनोगे, राइट? जाके। So yeah, excellent example. I think excellent analogy. Great analogy. I think if we were to put this in action, and I'll probably give my closing thoughts, which is if you want this to work, or if you want to see whether this works for you or not, or whether this is something where you want to invest your time. First of all, again, believe. Believe that it works. Okay, it has worked for tons of people. If you think we are probably nobody, which is fair, you can probably find more examples of people, celebrities, entrepreneurs who believe this works. Second, start with something very, very small. So, for example, I would have started with a shoe. You could have started with even, no, actually, I started with a coffee and went on to other bigger things.
एंड इसमें ना आपको लॉजिक नहीं लगाना होता लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि वो कहाँ से आएगी कैसे आएगी, वो तुम्हारा काम नहीं है लॉजिक लगाना। तुमको सिर्फ अपनी विश पे कंसंट्रेट करना है, अपने एफर्ट्स पे कंसंट्रेट करना है। हर कुछ लोग होते हैं ना जो फैक्ट्स और लॉजिक्स में जाते हैं, तो फिर वो नहीं हो सकता। आप हर चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन ढूंढने चले जाओगे ना, तो मतलब इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग हो जाएगी उसके अंदर। इट्स लाइक जब स्विगी से ऑर्डर करें 10 मिनट में आए तो हमें मतलब नहीं है ना कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या कैसे आ रहा है, जैसे मर्जी आ रहा है, तुम्हारा 10 मिनट में पहुंच रहा है। That's it. सही तो बात तुम्हें है, सही लॉजिक नहीं बात है। लगाना है वो कहाँ से आएगा कैसे आएगा। हाँ, बट तुम्हारे इंटेंशन प्योर होने चाहिए, इंटेंशन सही होनी चाहिए, उसमें किसी को हार्म करने का नहीं होना चाहिए, किसी को नीचा नहीं दिखाना, कुछ नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। सही है। तो मतलब टेक अवे में अगर मेरे को कुछ चीजें अगर लेनी है दोनों तरफ से, राहुल और प्रिया से, राइट, लाइक स्टार्ट स्मॉल, like there's no one way to manifesting your law of attraction. There could be multiple ways. You'll have to take things one day at a time. Make it fun, don't make it like too serious, और इतना भी मतलब उतने अंदर मत घुस जाओ कि तुम एक्चुअल जिस पर्पस के लिए तुम कर रहे हो वही मतलब like it beats the purpose ना। फिर you cannot have like a set timeline, मतलब सब लोगों के अलग अलग टाइमलाइंस होते हैं। you cannot again force it कि मेरे को ये 30 दिन में करना है तो 30 दिन में ही होना चाहिए। It can take probably 45 days, 50 days, मतलब एक साल भी लग सकता है, Don't depends put on that. restrictions. Yes. Don't put restrictions, exactly. And don't obsess over it again कि like अरे यार नहीं हो रहा है यार, अरे यार नहीं हो रहा है यार, होना चाहिए था अब तक। हाँ, तो सो वो मतलब डेस्परेशन नहीं शो करनी ना हमको कि हो क्यों exactly. नहीं रहा है। होएगा, अपने टाइम से होगा। मतलब अगर हमारी मर्जी से हम कह दे कि आज बारिश नहीं हो, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो वो यूनिवर्स काम कर रहा है जैसे भी कर रहा है, तो हम उसमें एक तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये लिमिटलेस होना चाहिए, इसमें कोई लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन होनी नहीं चाहिए। सही है। और फिर actions are necessary, obviously without actions you cannot get the results as well. So I think these are some of the takeaways that at least I got. Would you like to add anything? आपको कुछ add करना No, अच्छा man. I लगेगा? think you are a great host, so I think this went आई great. थिंक बहुत चीजें हमने कवर कर ली हैं, एंड मे बी फ्यूचर में और ज्यादा वीडियोस में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यूनिवर्स कैसे बिल्कुल। काम करता है, हमारी विशेस कहाँ जाती हैं, कैसे काम करती हैं, क्या इसमें हमें लॉजिक लगाने होते हैं। मतलब वैसे तो लॉजिक इसमें लगता नहीं है, बट हाँ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे हमारा माइंड प्ले करता है हमारे साथ, और हम अपने माइंड को कैसे ट्रिक कर सकते हैं। सो वो हम एक एलैबोरेट वीडियो नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं I कि have सही final है। questions. Surya, since you do this so well, why don't you start your own channel? स्टार्ट मैनिफेस्टिंग योर ओन चैनल। Yeah, this is the time. सही क्वेश्चन है। Take my advice, Surya 21 days So you're challenge. already taking action by hosting us. हाँ, I think it's simply a matter of now visualization or हाँ, या फिर using some of the techniques. बस बेसिक सिंपल Because other- 21 days I think, challenge ले लो। Surya, I think you should do this publicly and we should announce this publicly. Otherwise, it will be like simply a Gyan session where you So, came, Accountability Surya, नहीं अब होगा। unless you're not applying something which you just अब learned. तुम्हारे ऊपर एक सोसाइटी पीयर प्रेशर कह लो या कुछ भी, अब तुम्हें इस चीज को एक मतलब सीरियस 21 फॉर्म दिन। में, हाँ 21 days 21 इन्फॉर्मेशन दिन चैनल है। मेरी तरफ से एडवाइस तुमको ही है। सही है। अकाउंटेबिलिटी, एक्सटर्नल फैक्टर्स आ रहे हैं, सही है। तो आप लोग अगर देख रहे हो वीडियो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मुझे स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं, और आपको इस वीडियो में कौन सा सेक्शन अच्छा लगा उसके बारे में भी कमेंट करना, और आपको नेक्स्ट वीडियो क्या देखना है वो भी कमेंट करना, और साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। Oh my God. Thank you. Thank you so